After exploring Orcha, we are here at Khajuraho. Welcome to my YouTube channel. My name is Annie, and if you're seeing this face for the very first time, do subscribe to my channel. And right now we are standing at Khajuraho temples, जो UNESCO World Heritage Site हैं, and these are managed by ASI in India. And these were actually 85 temples and built during the 9th till 12th century के बीच में. However, till date only 20 to 25 of them remain, and these structures are majestic. I never thought कि दूर से भी इनकी इतनी minute details दिखेंगी. Specifically अभी हम western group of temples में हैं. There are eastern group of temples and southern group of temples as well. So western group जो है they are more famous ones and usually लोग इसको पहले explore करते हैं. So let's go. The first temple that we have come to is the Kandhariya Mahadev temple, and oh my god, धूप बहुत ज़्यादा है. So this was built in the Chandela dynasty, just like every other temple that you will see. ये सारे temples Chandela dynasty के time ही built हुए थे, and this one is dedicated to Lord Shiva. So the lower level of the sculptures which I am seeing, इसमें there are horses and maybe the army and even elephants के sculptures हैं. And this temple does have some erotic sculptures. So temples, it is not specifically एक ही temples में सारे sculptures हैं. हर temple में थोड़ा थोड़ा part है erotic sculptures का. Right now we can see like इसका जो center portion है बिल्कुल, इसमें है वो erotic sculptures. While a lot of sculptures have retained their original form, some sculptures कुछ हैं जो बीच में टूट रखे हैं. Some are किसी की head नहीं है, they have been beheaded and all of that. But जो ऊपर level वाले sculptures हैं, that is what I have noticed, and they are size में भी थोड़े बड़े, तो उन्होंने अपनी shape सबसे अच्छे से retain की है, and they are actually adding to the beauty of the temple. The inside of the temple is all the more intricate and gorgeous. The Kandhariya Mahadev temple is connected to another temple, so आप बिना नीचे जाए ऊपर से ही cover कर सकते हो, and that's the second temple. In this temple, a lot of sculptures are of a couple, and the reason these sculptures are made is because it represents the physical bond between husband and wife, and also it represents that eventually हर कोई छोड़ के चल जाता है. It's only husband and wife that are going to stay together.
After the Jagdambi temple, which was Parvati ji ka temple, we have come to the Chitragupta temple, also known as the Sun temple, and this is the only temple जहाँ पर कोई भी erotic sculptures आपको नहीं मिलेंगे, and it resembles a lot to the Jagdambi temple जहाँ पर हम गए थे. कंधरिया महादेव के साथ ही जो temple attached है, and सूर्यदेव की अंदर मूर्ति है, and since it's a sun temple, so इसकी भी position इस वजह से है कि जो sun आता है वो ही जो अंदर गर्भगृह है उसको lit up करता है. सूर्य टेम्पल इज़ द वन जो सबसे ज़्यादा रीस्टोर किया गया है बाय ASI. सो एंट्रेंस स्पॉट जो है वो भी पूरा रीस्टोर किया गया है. इवन द टॉप ऑफ द टेम्पल जो है वो भी पूरा ASI ने रीस्टोर किया हुआ है. We are here to the other set of temples, and the first one that you see on the right side is the Vishwanath temple dedicated to Lord Shiva, and उनके बिल्कुल opposite जो है नंदी श्राइन है. जो पहला हमने Lord Shiva का टेम्पल देखा था वहाँ पर नंदी जी नहीं थे, बट यहाँ पर there is a dedicated shrine to नंदी जी. So इस टेम्पल के as I can see यहाँ पर there used to be 4 subsidiaries, and अब जो है सिर्फ 2 ही रह गई हैं. and जो इसका structure है it resembles the first temple that we saw and लक्ष्मणा टेम्पल, जिसको इसके बाद हम देखने जाएंगे. सो ये जो नंदी जी का स्ट्रक्चर है इट्स मेड फ्रॉम वन सिंगल स्टोन, एंड ये स्टोन भी कहीं आसपास से नहीं लाया गया. इट्स फ्रॉम पन्ना हिल्स, एंड ऑल आई कैन थिंक ऑफ इज इट ऑलरेडी लुक्स हैवी, एंड जब कार्विंग नहीं भी हुई होगी तो और ज़्यादा हैवी होगा. सो वहाँ से लेकर आना पन्ना हिल से एंड देन यहाँ पर कार्व करके बनाया जाना, इट माइट हैव बीन अ टास्क. देयर यूज्ड टू बी 2 शिवलिंग्स, एंड अब जो है सिर्फ एक ही शिवलिंग है. एंड बिल्कुल बॉर्डर पे अगर आप देखोगे सो सेंटर में जो है शिव जी हैं, इस साइड पे ब्रह्मा जी एंड देन विष्णु जी हैं, एंड नीचे गणेश जी एंड कौन सा आता है, कौन सा बोलते हैं गणेश जी और लक्ष्मी जी भी हैं. तो और द्वार पे जो है वो गंगा एंड यमुना जी. अब ये जो टेम्पल है दिस हैज़ बीन बिल्ट लाइक 200-300 ईयर्स अगो, एंड इसमें जो है 3 रिलीजन्स रिप्रेजेंट होता है. द फर्स्ट डोम दैट यू सी रिप्रेजेंट्स मुस्लिम्स, द सेकेंड वन इज़ द जैन्स का रिप्रेजेंटेशन, एंड द लास्ट वन जो है वो हिंदू रिप्रेजेंटेशन है. एंड ऑल्सो ये जितने भी टेम्पल्स हैं ना ये सिर्फ हिंदू रिलीजन के लिए नहीं बने हुए थे. दीज आर मेड फॉर जैन रिलीजन एज वेल. We are here at the Lakshmana temple, and some may confuse it कि राम जी के जो भाई हैं लक्ष्मण उनका टेम्पल है, बट ये है विष्णु जी का टेम्पल. एंड दिस इज़ द ओनली टेम्पल इन इंडिया जो पंचतंत्र स्टाइल में अभी तक प्रिजर्व्ड है, विच मीन्स देयर आर 5 स्ट्रक्चर्स दैट यू विल सी वंस यू एंटर द टेम्पल. So this temple also has erotic sculptures. However, it is important to know खजुराहो के सिर्फ 10% of sculptures जो है वो erotic sculptures हैं. And the reason these sculptures were made was, जितना मुझे सुनने को आया है talking to the guides and other people here, is because उस टाइम पे काफ़ी लोग जो है वो साधु बन रहे थे, and it was a threat कि population नहीं बढ़ेगी. So it is a part of life, and उस reason से मंदिर पे हैं erotic sculptures बनाए गए थे.
A common observation that I have seen is यहाँ पर जो ladies हैं, women को as godly figures represent and उनकी beauty represent की गई है almost in all the temples. It isn't only the Surya temple. I have noticed हर एक गर्भगृह में जो है लाइट स्ट्रेट जो अंदर आइडल रखा गया है वहाँ पड़ती है एंड यू कैन सी यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं है बट इट्स द विंडोज दैट्स गिविंग द लाइट एंड आइडल पे तो सीधा मेन गेट से लाइट आ रही है. आफ्टर 4 hours we have come to eat something and हमें जो कैफ़े मैंने ऑनलाइन भी काफ़ी देखा था people recommending the best cafe in खजुराहो. We have come to राजा कैफ़े and opposite है जो western group of temples हैं, so it's like walking distance once you exit from the temples. तो आपको बस left turn करना है and you will reach राजा कैफ़े. The vibe is amazing. So यहाँ हमें suggest किया गया कि यहाँ पर sunset काफ़ी सुंदर होता है. So let's see if we can come here during that time. But अभी तो हमें ये है कि AC में थोड़ी देर बैठे, थोड़ा बाहर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो चुका है. एज़ आई टोल्ड द वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस हैं एंड वहाँ पर ही आपको काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी भी मिलेगी एंड यहाँ ही सारे लोग ऑलमोस्ट आते हैं. एंड देन देर आर ईस्टर्न एंड सदर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स. सो एक दो वहाँ पर मेजर टेम्पल्स हैं, बाकी छोटे छोटे टेम्पल्स हैं. सो यू कैन ऑब्वियसली विजिट दोज टेम्पल्स एज वेल. हाउएवर अभी धूप काफ़ी है, सो हम अभी कैफ़े से फ्री हुए हैं एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आदिवर्थ म्यूजियम विच इज़ अनदर प्लेस दैट यू मस्ट विजिट इफ़ यू कम टू खजुराहो. एंड एज यू कैन मेक बाय द नेम, सो जितनी भी MP में ट्राइब्स हैं उनके होम्स एंड द यूटेंसिल्स दे यूज़, हाउ दे यूज़ टू लिव, वो सारा कुछ वहाँ डिस्प्ले किया गया है. सो येस वी आर गोइंग टू गो देयर एंड वहाँ पर जितना मुझे पता है वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, फोटोग्राफी अलाउड है. सो आई विल ट्राई टू पुट इन द पिक्चर्स एंड यू विल सी दैट. Adivarth Museum and as I said अंदर videos allowed नहीं है, so you'll just see pictures in a few seconds and see how the houses of different tribes of MP look like. Back at the hostel and I don't think I have to explain
how tired we are. You can look at my condition and see that. बट लास्ट हम आदिव्रत म्यूज़ियम गए थे एंड जब हम गए तब एसी नहीं उन्होंने ऑन किया था. हाउ वी टोल्ड देम एंड फिर एसी ऑन हुआ. सो इट इज़ एयर कंडीशनड. हाउ एवर जो ट्राइबल हाउसेज है वो एयर कंडीशनड नहीं है. एंड द टिकट इज़ 20 रुपीज़. अगर आपको फोटोग्राफी करनी है तो 100 रुपीज़ का आपको पास मिलता है. एंड इफ़ यू आस्क माई ऑनेस्ट ओपिनियन, शुड यू विजिट द म्यूज़ियम, आई वुड से 100%. Not only is it informative, but I believe even if you don't want to know about tribal history and all of that, you would be intrigued by जो भी वहाँ पर paintings वगैरह हैं and the stories involved behind them, and especially the tribal houses, how they are living in actual way also. मतलब जो tribal houses बने हैं, they are replica of how people actually live right now as well. So yes, I would say do visit that place. बहुत clean भी है, well maintained है, but it doesn't see much tourist, and that is one of the reason why I wanted to cover that museum, just so इस वीडियो के थ्रू थोड़ा सा बूस्ट मिल जाए. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो खजुराहो जाने से पहले, so you see that ये म्यूज़ियम भी आपको अपनी लिस्ट में ऐड कर लेना चाहिए. एंड राइट नाउ वी आर गोना रेस्ट. थोड़ी देर बाद उठते हैं, लाइक 1-2 घंटे के बाद. तब तक शाम होने का भी टाइम हो जाएगा. एंड येस, आई विल सी यू गाइस देन. डिनर एंड हम वापस आए हैं राजा कैफ़े, बिकॉज हमें इससे कंपैरिजन में कोई और कैफ़ेज़ इतने मिले नहीं यहाँ पर. भोजनालय वगैरह हैं, सो आपको जो मेन लेक एरिया है वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स का, उसके ऑपोजिट मिल जाएंगे काफ़ी सारे भोजनालय. बट वी डिडंट वांट टू एक्सपेरिमेंट, सो हम यहाँ पर ही आए हैं. वी हैव ऑर्डर डिनर. हाउएवर रास्ते में हमें हल्की सी झलक दिखी थी. आफ्टर द सनसेट द स्काई हैड टर्न्ड पिंक एंड वो इतना प्यारा लग रहा था लेक एरिया से. एंड इवन राजा कैफ़े का जो बाहर का सिटिंग एरिया है, आप वहाँ से भी सनसेट इन्जॉय कर सकते हो. उसी साइड सनसेट होता है. सो येस, इट विल बी अमेजिंग इफ़ यू कैन एन्जॉय द सनसेट फ्रॉम राजा कैफ़े और फ्रॉम द लेक. एंड एज यू कैन ऑलरेडी सी, मेरी शक्ल पूरी उतरी हुई है, आई एम सो टायर्ड. तो हम जाके बस सोएंगे. एंड बाकी जो खजुराहो रह गया है उसको अर्ली मॉर्निंग ट्राई करेंगे एक्सप्लोर करने का, बिकॉज परसों हम एनीवे यहाँ से जा रहे हैं. सो या, आई विल सी यू गाइज इन द मॉर्निंग. To a place which is one of the major reason why we hired an Activa. So Activa का cost हमें 500 पड़ा. We are staying at this hostel, Mustache Hostel, and इनसे ही हमने Activa hire कर ली थी. So that's the best option. Even खजुराहो में क्योंकि सारा कुछ काफ़ी पास पास है, so Activa सबसे सही रहती है. ऑटो को आप कितनी बार ही बुलाओगे. But we are heading like 20 kilometers, almost 20 kilometers away, I guess थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, from खजुराहो, and we are going towards a waterfall. Let's go. Honestly so much better than the pictures that we saw.
प्लेटफॉर्म एरिया एज वेल एज यू कैन सी बिहाइंड मी. सो जब रेनफॉल होकर हटी थी, द गाइड टोल्ड अस दैट ये वाला एरिया जो है वो पूरा पानी में कवर्ड था. एंड हमें तो अभी भी देख के लग रहा है कि इतना ज़्यादा वाटर की क्वांटिटी है. ऑल्सो इट्स नॉट जस्ट वन सिंगल वाटरफॉल बट मल्टीपल वाटरफॉल्स, जिसके कारण इसका नाम इज़ नॉट रने वाटरफॉल बट इट्स वाटरफॉल्स. This Ken river eventually goes and joins Yamuna. Also ये जितना भी एरिया है it used to be volcano. So काफ़ी टाइम पहले की बात है but रिवर के साथ साथ इसने अपनी जगह बना ली है. and this is how the cuts in the rocks now look like. रने फॉल से कुछ किलोमीटर्स ड्राइव करके एंड थ्रू अ वेरी टफ रोड हम आए हैं इस डैम के पास. सो ये जो डैम था ये टूट चुका है बिकॉज वाटर का फ्लो इतना ज़्यादा हो गया था. एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक नाउ. Apart from my friend, it's Shravya who has helped me throughout the shoot in खजुराहो. आपको जितने भी अच्छे वाले शॉट्स दिखेंगे एंड ड्रोन शॉट्स दिखेंगे वो सारे श्रव्या ने ही लिए हैं. एंड आई लिंक हिज इंस्टाग्राम ID राइट हेयर एंड डिस्क्रिप्शन में भी. डू चेक हिम आउट एंड इसका वर्क बहुत अच्छा है. सो दैट्स द रीज़न आई एम सो ग्लैड कि खजुराहो में आना एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरा सफल हुआ. सो येस ही इज़ लीविंग, इसलिए आई वॉन्टेड टू इंट्रोड्यूस हिम. इवन हमारी हालत ऐसे हो रखी है बट इट वॉज रियली इम्पॉर्टेंट यू गाइज नो हु वॉज बिहाइंड द कैमरा. Skipped the Raja Cafe for the day because Shravya suggested that we should try out this Badri Seth भोजनालय जो है मारवाड़ी रेस्टोरेंट है. सो मारवाड़ी थाली इज़ द स्पेशलिटी. तो वो ऑर्डर किया बिकॉज इट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट प्रॉपर मील ऑफ द डे एंड वन डीलक्स थाली वी हैव ऑर्डर्ड. सो लेट्स सी हाउ द फूड इज़. ऑनेस्टली जब मैंने इसको बाहर से देखा था, सो ग्राउंड फ्लोर पे है जो मेन कैफ़े है ना, बाहर से देख के आई वाज लाइक इट विल बी अ बेसिक कैफ़े बट इंटीरियर वाइज ओ माई गॉड आई एम इम्प्रेस्ड. बहुत अच्छा कैफ़े है एंड इट्स क्वाइट क्राउडेड. लाइक इतना ज़्यादा रश है, मुझे तो लग रहा था कि खजुराहो में तो लोग ही नहीं है बट यहाँ पर आके पता चल रहा है दैट द क्राउड इज़ रियल एट दिस मोमेंट. एंड येस आई विल ट्राई द फूड एंड लेट यू गाइज नो इफ़ द हाइप इज़ रियल. Hostel and in a food coma right now. Time is 6:30 and while it might look that we are doing cafe hopping बट दैट्स नॉट द केस. हम गए थे अपने हॉस्टल आफ्टर लंच, जो आपने लास्ट क्लिप्स देखी होंगी. उसके बाद मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था. एज सुन एज वी वर डन विद द लंच बारिश का मौसम हो गया, धूप कम हो गई थी, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गया था. एंड लाइक इट वॉज द परफेक्ट टाइम टू एक्सप्लोर खजुराहो. एंड वी वर मैड अबाउट द फैक्ट कि हम कल भी पूरा दिन एक्सप्लोर कर रहे थे, आज भी आधा दिन पूरा एक्सप्लोर कर रहे थे एंड इतनी ज़्यादा धूप थी. हाउएवर द मोमेंट वी वर डन विद सीइंग ऑल द टूरिस्ट प्लेसेस, मौसम अच्छा हो गया. सो वी वेंट बैक टू आवर हॉस्टल एंड नाउ वी हैव कम फॉर आवर डिनर एंड दिस इज़ बाय द लेक साइड एंड बहुत प्यारा सा बना हुआ है. स्पेशली द व्यू दैट यू गेट एंड यू कैन सी द सनसेट ऑल्सो फ्रॉम दिस प्लेस. एंड टॉकिंग अबाउट द टूरिस्ट प्लेसेस इन खजुराहो, येस देयर इज़ वन मोर प्लेस जो मुझे देखनी है विच इज़ अ टेम्पल. शिव जी का टेम्पल है, वो मैं देख नहीं पाई. कल सुबह जाऊँगी, सुबह सुबह दर्शन करेंगे एंड आई विल शो यू गाइज. उसके बाद वी विल बी एंडिंग दिस ट्रिप बिकॉज कल ही हमारी ट्रेन है टू द लास्ट स्पॉट इन दिस 8 day long trip. So yes, after dinner I'll see you guys in the morning. डिनर बोल के फ्रेंच फ्राइज एंड बर्गर ऑर्डर करने वाले लोग. दिस इज़ खजुराहो एट 8 PM.
द रोड्स आर रियली गुड, जितनी हम मतलब आसपास जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उसके आसपास ही हम घूमे हैं। एंड वी वेंट टू रन फॉल्स ऑल्सो, तो रोड्स आर एक्चुअली गुड, आप आराम से अपना 2 व्हीलर ड्राइव कर सकते हो। एंड टॉकिंग अबाउट सेफ्टी, इट्स 8 PM एंड यू नो रश चल फिर रहा है, लाइक काफ़ी लोग हैं, स्पेशली जो लेक के पास का एरिया था वहाँ पे तो अच्छा खासा क्राउड इस टाइम के पास भी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स 6:30 एंड मैंने कल ही आपको बताया था दैट आई विल बी गोइंग टू द मतंगेश्वर टेम्पल, शिव जी का टेम्पल है एंड वो वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में ही आता है। हाउएवर उसकी एंट्री जो है ना वो अलग है बाकी टेम्पल्स से, इसलिए जब हम वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स कवर कर रहे थे तो तब मैं वो कवर नहीं कर पाई, बट आई वॉन्टेड टू मेक श्योर दैट बिफोर वी बोर्ड आवर ट्रेन टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन मैं वो कवर करके जाऊँ। सो आई एम गोइंग देयर राइट नाउ। हमारे पास एक्टिवा तो थी नहीं बिकॉज 2 दिन के लिए हुई थी, सो उन्होंने ऑटो बुला दिया है, तो वो यही मुझे लेकर जाएंगे एंड वापस भी ले जाएंगे। These are the western group of temples and this is a different route जिसको आपको लेना होता है to go to the मतंगेश्वर temple। टेम्पल के बहुत कम स्कल्पचर्स हैं जो अभी भी प्रेजेंट है, बाकी सारा जो है वो रीस्टोर किया गया है। एंड द शिवलिंग इज़ द लॉन्गेस्ट शिवलिंग एंड यहाँ पर माना जाता है दैट हर साल ये शिवलिंग एक चावल के दाने के जितना बड़ा हो रहा है एंड जितना ऊपर बढ़ रहा है उतना ही नीचे भी बढ़ रहा है, लाइक फ्रॉम द ग्राउंड नीचे को भी बढ़ रहा है। सो येस, दिस इज़ द मतंगेश्वर टेम्पल। मैं परिक्रमा पूरी करके फिर मैं अंदर जाऊँगी। And with that, we are going to end our trip on really पॉजिटिव नोट। आई टोल्ड यू, मतलब मुझे किसी भी तरह आना था कल, चाहे मैं जितना मर्जी थकी हुई थी, आई न्यू मुझे शिव जी के टेम्पल में आना है बिकॉज़ पता नहीं कब मैं खजुराहो फिर आऊँगी। बट इस टाइम गर्मी बहुत है, दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्ट्रिक्शंस जो हमें आ रही थी, जिसके कारण हम ईस्टर्न एंड सदर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स एक्सप्लोर नहीं कर पाए। बट आई गेस मैंने स्टार्टिंग में ही लिस्ट कर दी होंगी, अगर नहीं किए यहाँ लिस्ट कर दूँगी कौन से टेम्पल्स है जो आपको एक्सप्लोर करने चाहिए। एंड कम ड्यूरिंग अक्टूबर टू फेब के बीच का टाइम आपको बहुत अच्छा मौसम मिलेगा। एंड येस, आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइज एन्जॉयड इट। अगर अच्छी लगी तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वी विल बी रिलीजिंग द पार्ट 3 ऑफ दिस सीरीज़ ऑफ मध्य प्रदेश। आज हमारी ट्रेन है एंड वी आर हेडिंग टू द फाइनल डेस्टिनेशन। फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया चैनल्स, वहाँ पर लाइव अपडेट्स आती रहती है दैट वेयर आई एम गोइंग नेक्स्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ऑब्वियसली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई फीडबैक है फिर भी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड सारी डिटेल्स, हमारा स्टे, हमने जो ऑटो करवाया था, इवन वो सारा कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिस्ट कर दूँगी। तो अगर आप खजुराहो आ रहे हो, आई होप दिस विल बी द अल्टीमेट ट्रैवल गाइड एंड आई विल सी यू गाइज फ्रॉम आवर फाइनल डेस्टिनेशन।